Good morning. May I audible? Yes, ma'am. Okay. Yes. In the last lecture, we have started the transaction. Okay, and transaction protocols. What is transaction now? You know. Okay, transaction is a set of tasks, small set of tasks. You can say. Okay, there are different transaction properties are there, and transaction states are there. Okay, acid, atomicity, consistency. Okay, then yes. Yes, yes. Tell me the property of transaction. Acid property. A for atomicity, consistency, then isolation and durability. Okay. A, C, I, D. All are the properties of transaction. Okay. Then there are different states of transaction. Okay. And which are the state of transactions? Which are the states of transaction? Yes, fast. Hmm. Which are the states of transaction? Ah, yes, Kohinoor. Partial state Hmm. communicated. Hmm. Active state, yes, Rinki. Then active state, then partial committed state. Okay. Then failure. Okay. Yes, commit. Yes, Rinki. Okay. So all are the states of transaction that we have already covered in the previous lectures. Okay. Now concurrency. What is the meaning of concurrency? Concurrency means multiple transaction. Okay, multiple transaction performed simultaneously on the same database. It is called concurrency. Okay. Yes, Kohinoor terminated. Yes. Okay. So what is the meaning of concurrency? Concurrency means simultaneously uh, transaction, okay, on the same database. But more than one transaction can perform simultaneously on the same database. Okay, that there is one database. Okay, for every system there is one database. So it is possible, okay, for that database there are multiple access, okay, of the transaction. That is called the concurrency. In concurrency control, the multiple transaction can be executed simultaneously. It may affect the transaction result. Okay, it is highly important to maintain the order of execution of those transactions. So we have to maintain the order of the transaction. Okay, we have to decide which transaction first access the database. If all the transactions simultaneously access the database, then what will be happen? That there are chances that database may goes into the inconsistent state. Okay, for example, there are different issues that we have covered. Okay, what are the problems of the concurrency control? The lost updates problem, dirty read problems, unrepeatable read problems, all are the problems. Okay, these problems happens when the uh, concurrency are there for the database, means multiple transaction can access the database at the same time. Okay, so possibility hai ki all these problems may be occur. Okay, so what is the goal of concurrency control? Why we need to control the concurrency? The primary goal of concurrency is to ensure the atomicity of the execution of transaction in a multi-user database environment. In a multi-user, okay, means there is one database, but multiple user can access that database. Multiple user hai to multiple transaction hai. Okay, so to avoid these problems we have to uh, use the protocols. Okay, we have to use the protocol. There are different types of protocols. Okay, in the last lecture we have started the log based protocols. Okay, protocols means set of rules and regulations, okay, that we have to apply to the database. So what will be the happen? The database will never goes into the inconsistent state, okay, when we apply the concurrency control protocols. Then otherwise क्या हो जाएगा? The issues जो हमने ऊपर देखे, lost update वगैरह, the problems will be occur. Okay, the first protocol, that is log based protocol. Okay, log based protocol. In this type of protocol, any transaction cannot read or write the data, okay, until it acquires an appropriate lock on it. Obviously log based protocol है तो कोई भी transaction को क्या acquire करना पड़ेगा? Lock. Okay,
there are two types of lock, shared lock and exclusive lock. Okay, there are two types of lock, shared lock and exclusive lock. Shared lock matlab only read only lock. Okay, if the transaction acquire the shared lock, then that transaction can only read the data. That transaction cannot update the data. Exclusive lock, in the exclusive lock, the data item can be both read as well as written by the transaction. Okay, data item means क्या, जो भी आपको अपडेट करना है, चेंज करना है डेटाबेस में, ठीक है, जो भी वेरिएबल्स वैल्यूज जो भी चेंज करना है, दैट इज कॉल्ड द डेटा आइटम. So data item can be both read as well as written by the transaction. Okay, this lock is exclusive, and in this lock, multiple transactions do not modify the same data simultaneously. Okay, अगर एक transaction को हमने exclusive lock दिया है, okay, if we have assigned the exclusive lock to one transaction, so we cannot assign the second transaction to the same exclusive lock. नहीं दे सकते हम लोग. Why? Because at a time only one transaction can update or modify the data. Okay, so ये लॉक बनाया हुआ है. शेयर्ड लॉक जो है, द शेयर्ड लॉक हम लोग असाइन कर सकते हैं मल्टीपल ट्रांजैक्शन को. व्हाई? बिकॉज शेयर्ड लॉक में ओनली डेटा क्या होगा, रीड होगा, अपडेट नहीं होगा. तो मल्टीपल ट्रांजैक्शन कैन ही रीड द डेटा आइटम साइमल्टेनियसली. ओके, तो शेयर्ड लॉक पॉसिबल है कि वी कैन असाइन द शेयर्ड लॉक टू द मल्टीपल ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली. ओके, बिकॉज उसमें रीड करना है, राइट नहीं करना. सॉरी, वी कैन नॉट राइट द data when we have the shared lock. Okay, transaction के पास अगर shared lock है तो वो transaction only read कर पाएगा database को, उसको update नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो this is two types of lock है. ठीक है, तो लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल में देयर आर अगेन उन्होंने 4 टाइप्स डिवाइड किया हुआ है. द फर्स्ट इज सिंपलिस्टिक लॉक प्रोटोकॉल. It is the simplest way of locking the data while transaction, locking the data while transaction. Simplistic lock based protocol allow all the transaction to get the lock on the data before insert or delete or update on it. Okay, जितने भी ट्रांजेक्शन आ रहे हैं सबको वो क्या कर देगा, लॉक जो है असाइन कर देगा. Okay, allows all the transaction to get the locks on the data before insert or delete or update on it, and it will unlock the data item after complete the transaction. Okay, transaction complete हो जाएगा तो जितने भी ट्रांजेक्शन को लॉक्स दिया है वो हर एक ट्रांजेक्शन अपना अपना लॉक क्या कर देगा, छोड़ देगा, रिलीज कर देगा. ओके, एक्वायर करना है, रिलीज करना है. एक्वायर मतलब क्या, उसको चाहिए, वो रिक्वेस्ट करा, उसने ले लिया, एक्वायर गेटिंग. ओके, एंड रिलीज मतलब क्या, छोड़ दिया, लीव इट, उसको लीव कर दिया, ट्रांजेक्शन ने जो लॉक था वो लीव कर दिया. ठीक है, तो देयर आर टू प्रोसेस होता है, लॉक एक्वायर करना एंड उसका यूज होने के बाद अपना ट्रांजेक्शन खत्म होने के बाद लॉक को रिटर्न कर देना, रिलीज कर देना. ओके, द सेकेंड प्रोटोकॉल दैट इज प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल, ये भी हमने कवर किया था. ओके, इन प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल, ओके, तो इसमें क्या होगा, द ट्रांजैक्शन, ओके, ट्रांजैक्शन विल लिस्ट ऑल द डेटा आइटम्स ऑन विच दे नीड्स द लॉक्स. ओके, ट्रांजैक्शन क्या करेगा, पहले इन एडवांस ट्रांजैक्शन हैज टू लिस्ट ऑल द डेटा आइटम्स, ओके, ऑन विच दे नीड्स द लॉक. जो ट्रांजैक्शन सिस्टम में एंटर हो रहा है वो क्या करेगा, उसको जो भी डेटा आइटम्स, मतलब जो भी डेटाबेस में जो भी अपडेट करना है, जो भी कॉलम्स है, तो जो प्रोसेस उसको करना है, जिसको उसको कुछ भी रीड है तो राइट करना है, वो क्या करेगा, लिस्ट आउट करेगा. ओके, ओके, कि ऑल ये डेटा आइटम्स है, मुझे इसको प्रोसेस करना है. ठीक है, मुझे इसको एक्सेस करना है, आई हैव टू read or I have to write or I have to update these records, this data. Okay, so before initiating an execution of transaction, it requests DBMS for all the logs on those data items. Then वो क्या करेगा, DBMS को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे इसको एक्सेस चाहिए, तो मुझे ये सब सारी चीजों के लिए I want the logs. Okay, और all the log, for example ये records है, ये 5 records है, 5 records मुझे एक्सेस करना है, मुझे अपडेट करना है, उसको मॉडिफाई करना है. आई वांट टू अपडेट दिस 5 records को, जिसका सिटीज ये है, तो जो भी उसको करना है, ठीक है, वो क्या करेगा कि डीबीएमएस को रिक्वेस्ट करेगा, इतने रिकॉर्ड्स है, फॉर ऑल दिस रिकॉर्ड्स आई वांट द लॉक. तो डेटाबेस क्या करेगा, उसको लॉक असाइन कर देगा. जब वो 5 आइटम्स को अपडेट कर रहा है, उसको चेंज कर रहा है, तो एट दैट टाइम और कोई ट्रांजेक्शन अगर आ रहा है तो वो 5 लॉक्स को असाइन एक्सेस नहीं कर सकता. व्हाई? बिकॉज डीबीएमएस ने क्या किया, जो ट्रांजेक्शन पहले आया था उसको लॉक असाइन कर दिया. तो एट सेम टाइम अगर और कोई ट्रांजैक्शन सिस्टम में एंटर हो रहा है और वो भी सेम आइटम्स को अपडेट करने जाएगा तो उसको नहीं मिलेगा. ओके,
So before initiating an execution of transaction, it requests DBMS for all the locks on those data items. Okay, if all the locks are granted, then these protocols allow the transaction to begin. Okay, when the transaction is completed, then it release all the locks. Clear? Simple है. Pre-claiming, उसका नेम पे से we can understand कि pre-claiming. Okay, यूज करने से पहले वो claim करेगा. Okay, वो क्या है? Transaction will claim कि I want the locks on these data items. When the DBMS grant, okay, DBMS उसको permission देगा. DBMS will give the permission. Okay, you can take the lock. तो वो lock acquire करेगा. तो उसको जो भी प्रोसेसिंग करना है वो प्रोसेसिंग कंप्लीट करेगा एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेसिंग द ट्रांजैक्शन रिलीजेस ऑल द लॉक्स. ओके, सिंपल है. If all the locks are not granted, then this protocol allow the transaction to roll back, okay, and wait until all the locks are granted. If all the locks are not granted, okay, अगर ट्रांजैक्शन ने रिक्वेस्ट किया DBMS को मुझे ये 5 आइटम्स पे लॉक चाहिए, मतलब उसको कितना लॉक चाहिए ट्रांजैक्शन को? 5 लॉक्स चाहिए. एक डेटा, एक रिकॉर्ड चाहिए, सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ रिकॉर्ड. ठीक है, तो DBMS जो है उसको बोलेगा कि नहीं, आई कैन गिव ओनली 2 लॉक्स, मतलब मैं ये 2 रिकॉर्ड्स के लिए आपको लॉक दे रहा हूँ. व्हाई? बिकॉज बाकी जो 3 रिकॉर्ड्स से और कोई ट्रांजैक्शन काम कर रहा है. तो क्या होगा, जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो उसने रिक्वेस्ट किया था, द ट्रांजैक्शन हैव टू वेट. उसको क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा. ओके, ठीक है. तो रोल बैक अगेन वो अप्लाई करे, अगेन वो रिक्वेस्ट करेगा, या तो उसको वेट करना पड़ेगा until all the locks are granted. Okay, if the transaction wants 5 locks, okay, for 5 records के लिए उसको locks चाहिए and DBMS उसको only 2 locks दे रहा है first 2 records access करने के लिए. तो वो ट्रांजैक्शन क्या करेगा? वेट करेगा. ट्रांजैक्शन हैज टू वेट until all locks are granted. जब तक उसको सारे लॉक्स के लिए परमिशन नहीं मिल जाता है तो ट्रांजैक्शन क्या करेगा? वेट करेगा. ओके, तो दैट इज अ प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल. तो ये जो है दैट यू हैव टू रिमेम्बर. ओके, ये व्हाट इज अ प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल में क्या है? ठीक है, ट्रांजैक्शन को क्या करना है? इन एडवांस में रिक्वेस्ट करना है फॉर द लॉक्स के लिए. ओके, ऑन द डेटा आइटम्स पे. इफ अगर उसको सारे लॉक्स मिलेगा ट्रांजैक्शन को, then transaction will access that data, modify, update, जो भी करना है अपडेट करेगा, मॉडिफाई करना है. then after completing a transaction, okay, execution of transaction will release all the locks. Okay, and और एक condition है, you have to remember, if all the locks are not granted, okay, हर एक locks उसको permission नहीं, transaction को 5 records पे अपडेट करने के लिए locks चाहिए, but DBMS उसको 2 ही records allow कर रहा है, मतलब 2 ही records के लिए लॉक असाइन कर रहे हैं. तो ट्रांजैक्शन क्या करेगा? ट्रांजैक्शन विल वेट अंटिल, जब तक उसको 5 रिकॉर्ड्स के लिए लॉक्स नहीं मिल जाता. ओके, तो ये कंडीशन यू हैव टू रिमेंबर. क्लियर? यस और नो? क्लियर स्टूडेंट्स? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके, ओके, यस, ठीक है. The next type, okay, lock based में ही the next, पहले हमने simplistic देखा, pre claiming देखा. The third one is two phase locking. Okay, lock based protocol ही है, that is a lock based protocol ही है. Okay, the third उसका type है, that is two phase locking protocol, 2PL, two phase locking. Okay, two phase locking. The two phase locking protocol divides the execution phase of transaction into 3 parts. Okay, listen carefully. The two-phase locking protocol divides the execution phase of the transaction into 3 parts. जो ट्रांजैक्शन जो अकर हो रहा है, ठीक है, ट्रांजैक्शन जो अकर हो रहा है, ट्रांजैक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. Which are the parts? Let's see. In the first part, when the execution of the transaction start, it seeks permission for the lock it requires. Okay, ये जो हमने ऊपर देखा वही सेम स्टेप्स है. फर्स्ट स्टेप इज सेम इन द फर्स्ट पार्ट. व्हेन द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शन स्टार्ट, ओके, व्हेन द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शन स्टार्ट, इट सीक्स परमिशन फॉर द लॉक इट रिक्वायर्स. ठीक है, वो उसको जितने भी लॉक्स है उसके लिए वो क्या करेगा? परमिशन करेगा, परमिशन लेगा. इन द सेकेंड पार्ट, the transaction acquired all the locks.
ओके, सेकेंड पार्ट में क्या होगा, ट्रांजेक्शन को सारे लॉक्स मिल गए. The third phase is started as soon as this transaction release its first lock. Okay, the third phase is started as soon as the transaction release its first lock. Means in the third phase the transaction cannot demand any new lock. It only release the acquired lock. मतलब first step में वो क्या करेगा, एक seek the permission, कि वो permission लेगा लॉक के लिए. सेकेंड फेज में ट्रांजेक्शन को लॉक्स मिल गया. ओके, सेकेंड स्टेप में ट्रांजेक्शन ने जो रिक्वेस्ट किया था उसको लॉक्स ले लिया, मिल गया. 5 रिकॉर्ड्स उसको अपडेट करना था, 5 रिकॉर्ड्स के लिए 5 लॉक्स द ट्रांजेक्शन गेट. ओके, बट इन थर्ड फेज में, ओके, नेक्स्ट फेज में क्या होगा, ट्रांजेक्शन अपना, उसने अपना जो वर्किंग है, ट्रांजेक्शन खत्म कर लिया, एग्जीक्यूशन खत्म कर लिया. देन वो क्या करेगा, उसने जो लॉक्स लिया था उसको, लॉक्स को क्या करेगा, रिलीज करेगा, छोड़ देगा. बट वो न्यू लॉक्स के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर पाएगा. द सेम ट्रांजेक्शन कैन नॉट डिमांड एनी न्यू लॉक. ओके, मतलब नेक्स्ट थर्ड फेज में क्या होगा, अपना उसने काम खत्म किया, रिलीज कर दिया. बट नेक्स्ट अगर उसको वो ट्रांजेक्शन को अगेन न्यू लॉक चाहिए तो इट कैन नॉट डिमांड एनी न्यू लॉक. इट ओनली रिलीज द एक्वायर लॉक. थर्ड फेज में वो क्या करेगा, उसने जितने भी लॉक्स एक्वायर किया था, लिया था, उसको वो क्या करेगा, ओनली रिलीज करेगा. तो दिस आर दी 3 स्टेप्स. फर्स्ट वो रिक्वेस्ट करेगा, सेकेंड उसको लॉक्स मिल गए, अपना एग्जीक्यूशन खत्म करेगा. थर्ड फेज में एग्जीक्यूशन खत्म करने के बाद वो रिलीज करेगा. वो रिलीज किया तो वो न्यू लॉक के लिए अगेन रिक्वेस्ट नहीं कर सकते. इन द प्रीवियस ट्रांजैक्शन में ऐसा कुछ उन्होंने रूल नहीं दिया था. ओके, सो इन दैट प्रोटोकॉल कि द ट्रांजैक्शन कैन अगेन डिमांड फॉर द न्यू लॉक. बट इन दिस टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में द ट्रांजैक्शन कैन नॉट डिमांड एनी न्यू लॉक. ओके, in the third phase transaction cannot demand any new locks. मतलब after releasing all the locks, okay, एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद, सारा लॉक रिलीज होने के बाद ट्रांजैक्शन जो है वो न्यू लॉक के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते. ट्रांजैक्शन कैन नॉट गेट द न्यू, कैन नॉट एक्वायर, और यू कैन से कैन नॉट गेट द न्यू लॉक. ओके, ओनली रिलीज द लॉक, ओनली रिलीज द एक्वायर्ड लॉक. मतलब उसने जो लॉक्स लिया था उसको ओनली वो क्या करेगा, रिलीज करेगा. So this is a two-phase locking protocol. Okay, फिगर सेम है, लॉग लिया उसने 10 किया एंड लॉग जो है वो रिलीज किया. ओके, देयर आर 2 phases of 2PL. ओके, 2 phases उन्होंने बताया वही चीज को जो ऊपर उन्होंने बताया. पहले वो रिक्वेस्ट करेगा, देन एग्जीक्यूशन करेगा, रिलीज करेगा. रिलीज करने के बाद वो न्यू लॉक के लिए अगेन वो डिमांड नहीं कर सकता. ठीक है, तो देयर आर 2 phase उन्होंने बताया 2PL के लिए. ठीक है, 2 phase locking protocol के लिए. The first is growing phase and the second is shrinking phase. Okay, growing phase मतलब क्या, in the growing phase a new lock on the data item may be acquired by the transaction but none can be released. Okay, growing phase मतलब क्या, transaction जो है, the transaction acquired the lock but cannot release the lock. And shrinking phase मतलब क्या, the transaction जो है, ठीक है, वो रिलीज करेगा अपना लॉक बट कैन नॉट बी acquire the new lock. That is a growing and shrinking. Growing मतलब क्या, लॉक एक्वायर करना, रिलीज नहीं कर पाएगा. ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रांजैक्शन. देन श्रिंकिंग फेज मतलब क्या, कि वो जितने भी लॉक्स उसको रिलीज करेगा बट न्यू लॉक के लिए अप्लाई नहीं करेगा, रिक्वेस्ट नहीं करेगा. दैट इज श्रिंकिंग फेज. ओके, देयर आर 2 phases of 2 phase protocol, ग्रोइंग फेज एंड, इसलिए उसको 2 phases बोला, ग्रोइंग फेज एंड श्रिंकिंग फेज. एक बार फर्स्ट स्टेप में सारा जितना भी लॉक्स उसको चाहिए वो ले लेगा, रिक्वेस्ट करेगा, एक्वायर करेगा, देन ट्रांजैक्शन अपना खत्म करेगा. आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रांजैक्शन, कंप्लीशन द ट्रांजैक्शन, वो क्या करेगा, सारे लॉक्स रिलीज करेगा. एंड एट दैट टाइम रिलीज कर रहा है तो और कोई न्यू लॉक के लिए परमिशन नहीं ले सकता, डिमांड नहीं कर सकता. दैट इज अ ग्रोइंग फेज एंड श्रिंकिंग फेज. ओके, द नेक्स्ट phase, that is sorry, the next protocol जो है, that is a strict 2 phase locking protocol. okay, 2 phase ही है but strict 2 phase. उन्होंने थोड़ा सा modification किया है वही protocol में. okay, these are the rules and regulations है ये for avoiding the conflicts, or you can say to control the concurrency protocols. okay, तो the strict 2 phase locking protocol same ही है but थोड़ा सा modification है. let's see. In the first
फेस ऑफ स्टिक टू फेस इज सिमिलर टू 2PL, जैसा ये फर्स्ट फेस का एक्वायर करना है। ओके, फर्स्ट फेस में क्या था, एक्वायरिंग ऑल द लॉक्स ट्रांजैक्शन कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट नॉर्मली, the only difference between 2PL and strict 2PL is that strict 2PL does not release a lock after using it. Okay, read. Strict 2PL does not release a lock after using it. Strict 2PL waits until the whole transaction to commit and then it release all the locks at the same time. Okay, मतलब for example transaction acquires the 5 locks. Okay, transaction ने 5 locks लिया है for updating the 5 records. Okay, for example 5 में से first जो record था वो update हो चुका है. Okay, तो जो लॉक लिया था ट्रांजैक्शन ने फॉर अपडेटिंग दी फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए, वो लॉक को वो रिलीज नहीं कर सकता ट्रांजैक्शन। कब तक रिलीज नहीं करता, जब तक पूरा 5 रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं होता, 5 लॉक्स का अपना उस काम रिकॉर्ड्स के लिए अपना काम खत्म नहीं करता, तब तक until the transaction cannot release the locks, मतलब पूरा सारे रिकॉर्ड्स अपडेट होने के बाद ही सारे जो लॉक्स है वो एक साथ वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। देन इट रिलीज ऑल द लॉक्स एट द सेम टाइम। किसमें, इन स्टिक टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल में। अब ऊपर जो हमने देखा टू फेस प्रोटोकॉल में उन्होंने क्या बोला कि लॉक्स फॉर एग्जांपल उसमें भी 5 रिकॉर्ड्स अपडेट करना था, ट्रांजैक्शन ने 5 रिकॉर्ड्स ले लिया, देन अपना ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद फर्स्ट रिकॉर्ड अपडेट हो गया तो वो क्या करेगा, अपना जो फर्स्ट लॉग है वो रिलीज कर देगा। सेकंड रिकॉर्ड अपडेट हो गया तो सेकंड रिकॉर्ड रिलीज कर दिया, मतलब जो जो भी अपना ट्रांजैक्शन खत्म कर रहा है उतना लॉक्स वो क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है इन दी टू फेस प्रोटोकॉल में, इन दी टू फेस में। ओके, बट स्टिक टू फेस में क्या है, ट्रांजैक्शन जब तक अपना पूरा मतलब उसने जितने भी लॉक्स के लिए परमिशन लिया था, उसको जितने भी लॉक्स मिले 5 रिकॉर्ड्स अपडेट करने के लिए 5 लॉक्स उसके पास है, तो जब तक वो पूरा 5 रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं होता तब तक वो एक भी लॉक्स रिलीज नहीं करेगा। ओके, स्टिक टू फेस वेट अंटिल द होल ट्रांजैक्शन टू कमिट, पूरा ट्रांजैक्शन एक साथ खत्म होने के बाद, ओके, देन इट रिलीज ऑल द लॉक्स एट ए टाइम। ओके, strict to PL protocol does not have a shrinking phase of lock release, उसके पास shrinking phase नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो strict to phase में क्या है कि पूरा ट्रांजैक्शन एक साथ खत्म होने के बाद ही the transaction will release the lock, okay, at a time, okay, मतलब ऐसे नहीं कि 1 by 1 रिलीज करेगा, अपना काम खत्म हो गया रिलीज कर दिया लॉक, एक ऑपरेशन खत्म हो गया रिलीज करेगा, ऐसे नहीं, ट्रांजैक्शन अपना पूरा एग्जीक्यूशन खत्म करने के बाद ही जो लॉक्स है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो दैट इज अ strict two phase, that is a strict two phase। okay, it does not have cascading abort as 2PL does। okay, it does not have cascading। what is the meaning of cascading abort, मतलब क्या, as 2PL does, मतलब टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन अपना काम खत्म हो गया, लॉक छोड़ दिया, अपना काम खत्म हो गया, और जितने भी 5 रिकॉर्ड्स है 5 में से 1 खत्म हुआ, उसका एग्जीक्यूशन अपडेट हो गया, रिलीज कर दिया, 2 अपना किया तो रिलीज कर दिया, ठीक है। तो वैसे इसमें नहीं हो रहा है, ओके, इन दैट थिंग्स इज नॉट हैपनिंग इन द स्टिक टू फेस। ओके, डज नॉट हैव कास्केडिंग अबाउट, उसके पास कास्केडिंग अबाउट नहीं है। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कास्केडिंग, मतलब क्या कि पेरेंट को हमने डिलीट किया तो चाइल्ड ऑटोमेटिकली डिलीट होगा, बट इसमें ऐसे नहीं है, ठीक है, पूरा एक साथ ऑल दिस थिंग्स जो भी है, ठीक है, इन टू फेस प्रोटोकॉल में कास्केडिंग अबॉर्ट हो रहा है। कास्केडिंग अबॉर्ट मतलब क्या, एक डिलीट किया रिकॉर्ड, ठीक है, अगर वो रिकॉर्ड हमने डिलीट किया तो या तो अपडेट किया तो वो फॉरेन टेबल में भी होगा, मतलब सेकेंड टेबल में फॉरेन की दिया उसमें भी अगर वो होगा तो वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा तो अपडेट हो जाएगा, बट इसमें ऐसे नहीं हुआ है। ओके, इसमें कास्केडिंग अबॉर्ट नहीं हो रहा है, मतलब अगर पूरा ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीट किया देन आफ्टर ही हम लोग लॉक जो है वो रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। तो कास्केडिंग अबॉर्ट जो है दैट वी विल लर्न द कास्केडिंग इन, है अलग से टॉपिक है, तो इस कास्केडिंग को मिक्स मत करो, ठीक है। कास्केडिंग शेड्यूलिंग करके वी हैव द वन टॉपिक, ठीक है, यही यूनिट में है, तब इसको मिक्स मत करो, निकाल दो, क्योंकि आपको इतना समझ में नहीं आएगा। जिस तरह हम लोग प्रोटोकॉल्स पढ़ रहे हैं तो रूल्स ही याद रखो, ठीक है। तो दैट इज अ
प्रोटोकॉल्स, लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल्स, ठीक है। लॉग बेस्ड में हम लोग सिंप्लिसिटिक लॉक प्रोटोकॉल देखा, प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल, वी हैव लर्न टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल एंड स्ट्रिक्ट टू फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो ये लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स हो गया। द नेक्स्ट जो टाइप्स था, ठीक है, टू कंट्रोल द कॉन्करेंसी, that is a timestamp ordering protocol. First log based देखा, log based में हमने 4 types पढ़ा. The next is timestamp ordering protocol. Okay, timestamp ordering protocol. ऊपर log based में हमने lock acquired किया, 2 types का lock रहता है, shared lock and exclusive lock. Okay, the next is timestamp ordering protocols. The timestamp ordering protocol is used to order the transaction बेस्ड और देन टाइम स्टैम्प, मतलब कौन सा ट्रांजैक्शन फर्स्ट आया, कौन सा ट्रांजैक्शन सेकंड आया, बेस्ड ऑन देयर अराइवल टाइम्स। ओके, बेस्ड ऑन देयर अराइवल टाइम उनको एक प्रोटोकॉल सॉरी जो टाइम्स पे आ रहे हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा, जो सेकंड आ रहा है उसको नेक्स्ट प्रायोरिटी। ओके, मतलब बेस्ड ऑन देयर अराइवल टाइम्स। ओके, वो एक्सेस करेंगे, ट्रांजैक्शन विल एक्सेस द डेटाबेस। द टाइमस्टैम्प ordering protocol is used to order the transaction based on that timestamp. Okay, the order of transaction is nothing but the ascending order of the transaction creation. Okay, मतलब first जो ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली एक्सेस है, बट सारे के सारे तो नहीं है, कुछ तो माइनर डिफरेंस होगा ना, कि इस पहले ये आया देन ये आया देन कौन से टाइम पे वो आ रहा है। ओके, सिस्टम में कौन से टाइम पे एंटर हो रहा है। ओके, अगर सेम टाइम पे एंटर हो रहा है तो किसको कौन सी प्रायोरिटी दिए, बेस्ड ऑन दैट the transaction will be executed. That priority of the older transaction is higher than, okay, is higher, that's why it executes the first. The priority of the older transaction is higher. Okay, मतलब for example कोई transaction is system में 8 o'clock okay को आ रहा है, देन जो ट्रांजैक्शन वो 9 o'clock को आ रहा है, तो फिर तो 8:15 को आ रहा है, तो ओल्डर कौन सा हो गया, 8 o'clock वाला हो गया। तो जो ओल्डर ट्रांजैक्शन है, जो फर्स्ट आया था ट्रांजैक्शन, ओके, सिस्टम में जो ओल्डर ट्रांजैक्शन है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। ओके, वो ट्रांजैक्शन डेटाबेस को पहले एक्सेस करेगा। टू डिटरमाइन द टाइम स्टैम्प ऑफ ट्रांजैक्शन, दिस प्रोटोकॉल यूज द सिस्टम टाइप टाइम और लॉजिकल काउंटर। ओके, ट्रांजैक्शन का जो टाइम स्टैम्प है, ओके, डिसाइड ऑर्डर डिसाइड करने की कौन से बेस पे वो मतलब क्या यूज करेंगे। ओके, तो दिस प्रोटोकॉल यूज दिस सिस्टम टाइम, मतलब सिस्टम में जो डेट एंड टाइम है, ठीक है, तो वो सिस्टम का जो डेट एंड टाइम है दैट इट विल यूज और लॉजिकल काउंटर यूज करेगा। कोडिंग में कोई लॉजिकल काउंटर यूज हम लोग यूज करेंगे काउंटर, तो काउंटर यूज करेगा, या तो फिर सिस्टम का जो डेट एंड टाइम है, ठीक है, सिस्टम में जो टाइम अभी बता रहा है, बेस्ड ऑन दैट इट विल डिसाइड कौन सा ट्रांजैक्शन कभी आया, कौन सा ट्रांजैक्शन का टाइम स्टैम्प क्या है। ओके, इजी है। The log-based protocol is used to manage the order between conflicting pairs among transaction at the execution time. Okay, but the timestamp-based protocol start working as soon as transaction is created. ठीक है, वो ऐसे कोई लॉक वगैरह कुछ नहीं करेगा। ठीक है, जो टाइमस्टैम्प है वो लॉक वगैरह कुछ नहीं करेगा। इन द लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल में क्या था, उनको ऑर्डर मेंटेन के ट्रांजैक्शन सिस्टम में आ रहा है, वो ट्रांजैक्शन आर एक्वायरिंग लॉक, द ट्रांजैक्शन रिक्वेस्टेड फॉर द लॉक्स, after acquiring the lock the transaction can perform, okay, execute, but in the timestamp ordering में ऐसे कुछ नहीं, जैसे सिस्टम में जो ट्रांजैक्शन आया, ठीक है, based on that timestamp क्या होगा, transaction will execute the database. Let's assume that there are two transactions T1 and T2. Suppose the transaction T1 has entered the system at 007 times पे आ रहा है, and the transaction T2 has entered the system at 009 times. So T1 has the higher priority, so it executes the first as it entered the system first. Okay, the timestamp ordering protocol also maintains the timestamp of read and write operation on the data. Okay, जो timestamp system में आ रहा है उसके पास भी दो ऑपरेशन होगा, रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन। एवरी ट्रांजैक्शन इन द सिस्टम हैज टू ऑपरेशन, एक तो रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन, क्योंकि डेटाबेस को हम लोग दो ही चीज कर सकते हैं, एक तो हम लोग रीड कर सकते हैं एंड राइट कर सकते हैं, मतलब अपडेट कर सकते हैं। रीड करना मतलब क्या, रिट्राइव करना। ओके, यूजिंग द सिलेक्ट क्वेरी वी आर रिट्राइविंग डेटा। ओके, सिलेक्ट क्वेरी हो गया, देन डिसेंडिंग और असेंडिंग एंड वगैरह कंडीशंस हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस को रीड करते हैं। ओके, एंड अपडेट कमांड्स एंड इंसर्ट कमांड्स हम लोग क्या करते हैं, राइट करते हैं। तो देयर आर ओनली टू ऑपरेशन होता है डेटाबेस पे, तो रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन। रीड मतलब कि हम लोग चेंजेस नहीं कर रहे हैं, वी आर ओनली गेटिंग द डेटा। ओके,
रीड करना मतलब क्या, जो है उसको हम लोग रीड करें, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करें। एंड राइट मतलब क्या, वी आर अपडेटिंग द डेटा, वी आर चेंजिंग द डेटा, वी आर इंसर्टिंग द डेटा, ओके, वी आर डिलीटिंग द डेटा। डिलीट करना भी क्या हो गया, राइट ऑपरेशन में ही आ गया। डिलीट करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना, मॉडिफाई करना, ऑल आर दी राइट ऑपरेशन, ये सारे क्या है, राइट ऑपरेशन है। हाँ, बट रिटर्न करना, सिलेक्ट कंडीशन से रिटर्न करना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रिटर्न करना, एंड और अप्लाई करके, जो भी हमने देखा, ठीक है, ऑल वो सब क्या हो जाएगा, रीड ऑपरेशन। रीड में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होता डेटाबेस में, बट जब व्हेन वी आर डूइंग द राइट ऑपरेशन, so some modifications will be done in the database. Okay, so simultaneously read operation possible है, मतलब हम लोग एक ट्रांजेक्शन को, मतलब सॉरी, मल्टीपल ट्रांजेक्शन कैन रीड द डेटा साइमल्टेनियसली, बट मल्टीपल ट्रांजेक्शन कैन नॉट अपडेट द राइट ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। ओके, बहुत सारे ट्रांजेक्शन जो है वो रीड कर सकते हैं एक साथ, क्योंकि उनको रीड ही करना है, उसमें कुछ डेटाबेस में चेंज नहीं होना है। बट मल्टीपल ट्रांजेक्शन जो है वो एक साथ में राइट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर राइट करने जाएंगे, एक साथ चेंजेस करने जाएंगे, ऊपर जो हमने प्रॉब्लम्स देखा, लॉस्ट अपडेट वगैरह, डर्टी रीड वगैरह, तो वो सारा प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है, जनरेट हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए ऑल दिस आर प्रोटोकॉल्स है। तो टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल मतलब क्या, सिस्टम में जो प्रोटोकॉल्स पहले एंटर होगा, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट टाइम्स, अराइवल टाइम के बेस पे ट्रांजैक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ओके, डेटाबेस को एक्सेस करेगा। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल। TO मतलब क्या, टाइम stamp ordering protocol ensure the serializability since the precedence graph is as follows. Ensure the serializability, ये क्या है, ये this is a one topic है, small topic है that we will cover in the next lecture, ठीक है। Why? Because the precedence graphics follow, मतलब पहले ट्रांजेक्शन, सीरियल ट्रांजेक्शन, ओके, क्या फॉलो करता है, सीरियल ट्रांजेक्शन फॉलो करता है। ओके, मल्टीपल ट्रांजेक्शन जो सिस्टम में आ रहे हैं, बट जो पहला है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, देन उसके बाद पहला ने अपना जब तक काम खत्म नहीं करता तब तक सेकंड ट्रांजेक्शन को यूज नहीं कर सकता, सॉरी, सेकंड ट्रांजेक्शन कैन नॉट एक्सेस द सेम डेटा, ठीक है, मतलब उसको वेट करना पड़ेगा। तो दैट इज क्या हो गया, सीरियल, वन टाइप ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी, यू कैन से सीरियल में हो रहा है ट्रांजेक्शन विद स्मॉलर टाइम स्टैम्प देन ट्रांजेक्शन विद द लार्जर टाइम स्टैम्प। ओके, the TS protocol मतलब timestamp protocols ensure freedom from deadlock, that means no transaction ever wait, okay, deadlock में नहीं जाएगा, but the schedule may not be recoverable and may not even be cascade free, ठीक है, cascade का भी जाने ही दो, आपको cascade पता ही नहीं है तो you cannot understand the cascade, ठीक है, cascade का भी छोड़ दो, हम लोग देखेंगे। that is a timestamp ordering protocol, okay, कि सिस्टम में जो ट्रांजेक्शन एंटर हो रहा है, ठीक है, जो ट्रांजेक्शन आ रहा है, तो उसका अराइविंग टाइम जो है, ठीक है, उसका जो टाइम स्टैम्प जो है, बेस्ड ऑन द टाइम स्टैम्प ट्रांजेक्शन विल एग्जीक्यूट, ओल्डर ट्रांजेक्शन विल एग्जीक्यूट फर्स्ट, मतलब जो पहले आया ओल्डर ट्रांजेक्शन को पहला प्रायोरिटी दिया जाएगा, मतलब जो सिस्टम में पहले एंटर हुआ है दैट ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट फर्स्ट। क्या एग्जीक्यूट करेगा, उसको डेटाबेस में जो भी एग्जीक्यूशन करना है, रीड राइट, वो करेगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल देखा, लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल में उनके टाइप्स था, ठीक है, स्ट्रिक्ट फेज, सिंपलिसिटी, स्ट्रिक्ट टू फेज, ठीक है, वो ऑल आर दी टाइप्स लॉग बेस्ड। सेकंड हमने देखा टाइम्स स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल्स। थर्ड इज वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल, the third one is validation based protocol. See students, just थियरी है, आपको उसको याद रखना है, ठीक है, समझ के याद रखना है, रट्टा नहीं मारना है। ओके, जस्ट नेम पे से लॉग बेस है तो ऑब्वियसली लॉग उसको एक्वायर करना पड़ेगा, टू टाइप्स का लॉग रहता है, डिफरेंट उसमें रूल्स है कि सिंपलिसिटी में क्या है, स्ट्रिक्ट टू फेस में क्या है, टू फेस में क्या है, ओके, प्री क्लेमिंग प्रोटोकॉल्स में क्या है, तो नाम पे से यू कैन रिमेम्बर। ओके, सेकेंड जो हमने देखा था दैट इज टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, तो समझ पा रहा है कि टाइम स्टैम्प असाइन किया जाएगा, किसके बेस पर असाइन किया जाएगा, उनके अराइवल बेस पे। कौन डिसाइड करेगा, सिस्टम में जो डेट टाइम हम लोग यूज करते हैं बेस्ड ऑन दैट। ओके, द थर्ड इज नाउ वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। ओके, वैलिडेशन फेज इज आल्सो नोन एज ऑप्टिमिस्टिक concurrency control technique. Okay, in the validation based protocol, transaction is executed in three phases. Usko transaction has three phases. The first is read phase, the second is validation phase, and the third one is write phase. Okay, let's see what is the third one.